start. Main objective of today's session to solve a numerical uh, on shape function for CST element. Okay, so last time we discussed means how to solve or how to derive shape function for 1D element. Then we solve a few example on the basis of shape function of 1D bar element. Like last time we had derived a shape function for CST element. So generalized rule, that is number of node in element is equal to number of shape function. So CST, that is constant strain triangular element having 3 node and 6 degree of freedom. So ultimately 3 node means we have 3 shape function, and summation of all shape function is always equal to 1. Means here there are 3 shape function n1, n2, n3. So sum of all these 3 shape function is equal to 1. So then these are boundary condition possibilities to determine shape function. So first you take n1 equal to 1 at node 1, 0, 0, then psi 1, 0, 0, eta 0, 1, 0. Okay, जब आप 1 consider करते हो तो if you consider n1, then node 1 equal to 1 means maximum shape function possibility, and remaining node are 0. Then when you consider n2, then to determine n2, then node 2 consider as a 1, 1 and 3, 0. When you determine or calculate 3 and 3, then node 3 becomes 0 and remaining one are 0. So by using that boundary condition, we find out value of n1, n2 and n3. And before that, we assume the generalized equation for displacement, that is n is equal to a0 plus a1 psi plus a2 eta. Okay, so a0, a1 and a2 are constant of polynomial equation, and psi and eta, these are our natural coordinates. Okay, so we determine shape function n1, n2 and n3 in terms of psi and eta. Okay, in any numerical you always need natural coordinates to determine shape function, and by using shape function we can lastly calculate any property within that element. Okay, so just remember n1 equal to psi, n2 equal to eta, and n3, that is 1 minus psi minus eta. Okay, then this is local coordinate relation with shape function. So u and v are two displacement. If you consider any p point within that element, so that displacement of that p point, suppose in x direction, so we consider u, and in y direction we consider v. So how to uh, uh, determine that u? So n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3. ठीक है, आप हमेशा एक बात याद रखो, u की जगह डिस्प्लेसमेंट, देन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है. ठीक है, अगर आप u की जगह x लिखते हो तो दैट इज u1 means x1, u2 means x2, u3 x3. If you write y in left side direction, then we consider all individual y coordinates along with shape function, that is n1 y1 n2 y2 n3 y3, like that. Okay, so same fashion में आपको numerical solve करने हैं. Okay, so we'll take first numerical on the basis of shape function
of CST element. Okay, according to problem statement, in triangular element, so in triangular element, the node, there are three node, 1 2 3, having Cartesian coordinate. Triangular element node 1 2 3. Okay, so by methodology, local coordinate numbering system in counter clockwise. तो यहाँ पे हम अगर 1 कंसिडर करते हो, this is second and this is third. Then respective coordinate is given. 30 40 means x1 y1, then 140 70, that is x2 y2, and third, that is 80 140 respectively, means 80, that is x3 y3. So x1 y1, x2 y2, x3 y3. ठीक है, ये given है. Then displacement in mm at node 1 2 3. Okay, that is u1 v1 u2 v2 u3 v3. ठीक है, तो displacement at node 1 means u1 with respect to x direction, given कितना है 0.1. so this is displacement at x direction u1. in y direction v1 equal to 0.5. similarly at node 2 and node 3, u2 value of u2 and v2, value of u3 and v3 are given. Okay, देखो, without reading any further statement, we can consider p means value of p, that is in terms of displacement need to calculate. Okay, क्योंकि जो भी नोट के ऊपर प्रॉपर्टीज गिवन है वही आपको निकालना है. ठीक है, नोट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो ऑब्वियसली एलिमेंट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है. नोट के ऊपर टेम्परेचर है तो विद इन नोट टू फाइंड आउट टेम्परेचर. इफ मींस नोट के ऊपर जो भी नोन वैल्यू है, ठीक है, वही हम जो भी अननोन है विद इन एलिमेंट वो आपको डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो इतना सिंपल बेसिक रूल है. ठीक है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है. नोट के ऊपर जो अननोन, सॉरी, नोन प्रॉपर्टी गिवन है वही आपको विद इन दैट एलिमेंट अननोन निकालना है. ओके, so the point p within the element has Cartesian coordinate 77 and 96. Okay, position of p within element, so that is x and y, 77 and 96. For point p determine natural coordinate. in 2D natural coordinates are psi and eta. तो हमें psi और eta निकालना है. जैसे 1D में हमने रिलेशन डिराइव किया था psi इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेट. ओके, तो यहाँ पे नहीं डिराइव किया, लेकिन हाउ टू सॉल्व we'll explain step by step. Then obviously second step, that is find out shape function, that is n1 n2 and n3, and lastly the displacement. Okay, the displacement of point p. Okay, can anyone reply displacement whether 1 2 और 3, हमें कितने डिस्प्लेसमेंट निकालना है p के, 1 2 और 3? देखो, जैसे नेचुरल कोऑर्डिनेट आपको 2 निकालना है, साई एंड फाई. शेप फंक्शन आपको 3 निकालना है, n1 n2 n3. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? आपको डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है, 1 2 और 3? प्लीज रिप्लाई. yes, most of say 2, but someone say ऋतुजा भामरे, ऋतुजा भास्कर say 3, विशाल चाफलेकर sorry saying 3. डिस्प्लेसमेंट आई थिंक एक ही निकालना है ना. द पॉइंट p within element, so determine displacement of point p, है ना, 1 हो सकता है ना. ओके, 1 किसी का भी आंसर नहीं है, मींस मोस्ट ऑफ आप सभी का लॉजिक करेक्ट है. यस,
डिस्प्लेसमेंट विद इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, दैट इज u एंड v निकालना है। ठीक है, तो जिन्होंने 3 का है प्लीज मेक इट करेक्शन इन योर आंसर। ठीक है, तो हमें हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, टू फाइंड आउट u एंड v। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट p। ओके, so we'll solve step by step. First we require natural coordinate, then shape function, then we can determine displacement. ओके, तो हमारे पास लोकल सॉरी नेचुरल एंड ग्लोबल का रिलेशन नहीं है, लेकिन वी कैन यस, राहुल महाजन से 2D एलिमेंट, यस, दो ही आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए u एंड v। ओके, देन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट विथ नेचुरल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम in shape function in terms of x and in terms of y, we can write in such form, that is x is equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3, then y is equal to n1 y1 plus n2 y2 plus n3 y3। okay, just observe these two equations, we know the value of x1 x2 x3 and this x and y is nothing but coordinate of p point। ठीक है, ये भी आपके पास गिवन है, that is x and y value, that is 77 and 96। okay, so दो इक्वेशन में अननोन क्या है, that is n1 n2 n3, that n1 n2 n3 write in the form of natural coordinate, that is put value of n1 equal to psi, n2 equal to eta and n3 equal to 1 minus psi minus eta। okay, similarly modify equation of y, that is y is equal to psi y1 plus eta y2 plus 1 minus psi minus eta into y3। ठीक है, अभी दो इक्वेशन सिंपल ऑब्जर्व करो, इसमें अननोन क्या है, अननोन ओनली psi एंड eta, वी हैव टू अननोन एंड टू इक्वेशन। ठीक है, बाकी कुछ सब सिंप्लीफाई किया, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, ठीक है, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू, सो जो भी x के टर्म है, जैसे x x1 x2 एंड x3, वी हैव दैट वैल्यू, देन y y1 y2 एंड y3, ये भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। सो ओनली these two terms psi and eta are unknown value। ठीक है, तो आई थिंक दो इक्वेशन और दो अननोन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो बाकी के स्टेप्स सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ psi एंड eta। ठीक है, कैन एनीवन रिप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ psi एंड eta? नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है, नो डाउट। प्लीज बी रेडी विथ पेन एंड पेपर विथ कैल्सी, क्योंकि इसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फॉर प्रैक्टिस यू नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। कैन एनीवन रिप्लाई वैल्यू ऑफ psi एंड eta? एनीवन? ठीक है, पूरे क्लास की जरूरत नहीं, 200 बच्चे ने आंसर देना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ psi, ठीक है, ई लिखा है 0.3 एंड 0.2। ओके, 0.3 0.2 दो आंसर हो गए आपके। कंफर्मेशन के लिए तीसरा मिल गया। फर्स्ट दिया आंसर निखिल पाटिल, देन रुपेश अहिरे, देन प्राजक्ता ढोने, देन कासार निखिल, सभी ने आंसर दिए 0.3 एंड 0.2। ओके, लेट मी चेक। यस, करेक्ट आंसर 0.3 एंड 0.2। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस है। दो अननोन दो इक्वेशन, थ्री अननोन थ्री इक्वेशन, वी कैन इजीली सॉल्व और फाइंड आउट दैट वेरिएबल्स। ओके,
देन वैल्यू ऑफ शेप फंक्शन, सीधे सीधे इक्वेशन स्टैंडर्ड अवेलेबल है, n1 इक्वल टू साई दैट इज 0.3, n2 eta इक्वल टू 0.2 एंड n3 1 माइनस साई एंड eta 0.5. आप क्रॉस चेक कर सकते हो योर आंसर, whether your answer is correct or not. Summation of all three value equal to 1, 0.3, 0.2 and 0.5 equal to 1. ठीक है, तो आपके पास साई की वैल्यू अवेलेबल है. यस, जैस्मीन शेख, आरती पवार, योर आंसर आल्सो करेक्ट, 0.3, 0.2. ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है, मैं सिंपल एक छोटा सा क्लू देता हूं, आपको वैल्यू ऑफ यू एंड वी निकालना है. ठीक है ना. ओके, पी पॉइंट, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू एंड वी. ठीक है, u is equal to n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3 and v is equal to n1 u1 plus n2 u2 plus n3 v3 और u1 v1 u2 v2 u3 v3 वैल्यू गिवन है. जस्ट टेल मी लास्ट आंसर, फाइनल आंसर, u is equal to and v is equal to. ठीक है, आपका ध्यान है, आप सही डायरेक्शन में हो तो इजीली आंसर दे सकते हो. ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे यहाँ पे. सो फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम विशाल चाफलेकर, u is equal to 0.35, v is equal to 0.4. सेकंड आंसर निखिल पाटिल, बी डिवीजन, u is equal to 0.35, v is equal to 0.4. एंड आई रिक्वायर्ड वन मोर आंसर फॉर वैलिडेशन. ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट में 3 आंसर एसेंशियल है, इसलिए अभी फॉर वैलिडेशन. कासार निखिल, u is equal to 0.35. What about v? चलो वन मोर आंसर, ओनली फॉर वैलिडेशन. आपके आंसर देखो, विशाल का आंसर निखिल ने वैलिड किया है, अभी निखिल का आंसर निखिल कासर वैलिड करेगा, है ना. तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अमॉन्ग लर्नर. चलो एनीवन, यस, निखिल कासर ने ही वैलिडेट किया है आंसर, v इज इक्वल टू 0.4. ओके, एज ए टीचर फेज आई विल कंफर्म दैट. ठीक है, अमॉन्ग लर्नर आपके तीनों आंसर करेक्ट है with respect to teacher phase. Okay, so let me confirm that answer. Yes, 0.35 mm and v is equal to 0.4 mm. ठीक है, इक्वेशन ज्यादा कुछ नहीं है, u is equal to n1 u1 plus n2 u2. यहाँ लेफ्ट साइड अगर u है तो ऑब्वियसली राइट साइड इन टर्म्स ऑफ u, लेफ्ट साइड v है तो राइट साइड v. ठीक है, ये हमेशा याद रखो. ओके, आरती पवार करेक्ट आंसर 0.35, v 0.4. ऋतुजा भामरे करेक्ट आंसर. ऐसा एसेंशियल नहीं है कि चलो आंसर मिल गए, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू. अगर किसी ने सॉल्व किया है, इतनी मेहनत की है तो रिप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर ने बता दिया अभी आंसर, अभी हम रिप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, अगर आपने मेहनत की है, अच्छे से सॉल्व किया है, आपने आंसर करेक्ट फाइंड आउट किया है, तो आप रिप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं है या सर बता रहे नाम, चलो 200 लोग 200 स्टूडेंट में हमारा नाम आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं. सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप रिप्लाई करते जाओ. ओके, सेकंड क्वेश्चन. अगर मेथोडोलॉजी आपकी किसी की क्लियर है तो आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो. ठीक है, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन पुणे यूनिवर्सिटी में 2018 फॉर 10 मार्क्स. अभी आप बोलोगे कि सर ये सच में 10 मार्क के लिए है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छे है उनको लगेगा कि सर 2-3 मार्क के लिए मोर देन सफिशिएंट है. ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा है सर एक्चुअली ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए होना चाहिए. ठीक है,
लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट एग्जाम अगर जाते हो तो दिस क्वेश्चन आस्क फॉर ओनली 1 मार्क्स. ओके, सो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है. सो according to problem statement, the CST element is defined by three node located at position of node given, that is coordinate x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 4 2 and 3 5 1 2 3. For point P located inside the element, the shape function n1 n2, that n1 and n2 are 0.15 and 0.25 respectively. Determine the x and y coordinate of point P. Last question है, determine x y coordinate of point P. देखो ऐसे आंख बंद करके डायरेक्ट पहले नेचुरल निकालना है, फिर शेप फंक्शन निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आराम से पढ़ो. ओके, यश आगरकर ने आंसर दिया है x इक्वल टू 1.95. नहीं, एक्चुअली दोनों आंसर चाहिए. यश, प्लीज रिप्लाई x and y. Then your friend confirm that, and your third friend validate that answer. Okay, तो आपने इंडिकेट किया है आंसर. देन सेकंड अगर रिप्लाई आता है तो आपका आंसर हो जाएगा कंफर्म, एंड अगर थर्ड आंसर आता है तो आपका आंसर होता है वैलिडेट. ओके, सो दिस इज वैलिडेशन. Hint from my side, how to determine x and y. So x is equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3. ठीक है, तो आई थिंक आपको x1 x2 x3 गिवन है. x is equal to x1 sorry n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3. तो x की वैल्यू गिवन है, we required value of n. Similarly, y is equal to n1 y1 n2 y2 n3 y3. So y equal to, जैसे आपको रिक्वायर्ड है n1 y1, so y1 y2 y3 आर गिवन. सो दोनों इक्वेशन में क्या अननोन है? सिर्फ n1 n2 एंड n3. उसमें भी n1 एंड n2 गिवन है. n1 0.5 n2 0.25. and how to determine n3? Just difference of n3 means 1 minus n1 and n2. तो दोनों का एडिशन कितना है? 0.5 0.15 plus 0.25, that is 0.4. obviously n3 is equal to 0.6. यश आगरकर 1.95, then Nikhil Patil 2.95, y is equal to 3.65. then प्रसाद ने आंसर दिया है x इक्वल टू 2.95, y इज इक्वल टू 3.65. विशाल ने कंफर्म किया है, वैलिडेट किया है 2.95 3.65. रुपेश अहिरे 2.95 3.65. सेम आंसर गौरव वाजपेयी. देन but Yash remain or fixed with x is equal to 1.95 and y is equal to 3.65. यश अभी भी सेम आंसर पे है. देन तन्मय 2.95 3.65. चंद्रशेखर 2.95 3.65, सेम विथ ऋतुजा. देन अश्विन, देन गौड़ी, कासार निखिल, वैभव. यस, यश आगरकर 2.95 पे है अभी. ठीक है, चलो. Yes, Yash Agarkar say no sir, I have corrected. Yes, your answer 2.95, and Yash sorry, Harshada Patil, y is equal to 3.65. Okay. Majority answer x is equal to 2.95 and y is equal to 3.95. Majority or 100%. Okay. Okay.
let me check whether majority always win or not. X equal to 2.95, y equal to 3.65, ठीक है ना। देखो इतने सारे आंसर आने के बाद ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है ना। पहले प्रॉब्लम में 3-4 लोगों ने आंसर दिया, अभी 10-15 लोगों ने। इनकेस अगर ये नंबर आपका बढ़ता है, ठीक है, तो शेप फंक्शन पूरे साल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं फिर। थर्ड, a constant and triangular element defined by 3 node 1, 2, 3 and their respective coordinates 1.5, 2, 7, 3.5, 4 means x1, y1, x2, y2, x3, y3 are given. Evaluate the shape function n1, n2, n3 at the interior point p, value of x and y for p 3.85, 4.8. okay, यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन है, आल्सो डिटरमाइन द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन j, ठीक है। सो राइट नाउ वी स्किप दिस वैल्यू ऑफ j, ठीक है। हम ऑलरेडी मिस इसमें देखने ही वाले फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें जब हम एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये जैकोबियन मैट्रिक्स आपका कवर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इवैल्यूएट द शेप फंक्शन x and y given है। जस्ट आई वांट आंसर ऑफ n1, n2 and n3, ठीक है। ग्लोबल सॉरी जैकोबियन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं करना है, मेथोडोलॉजी सेम है, जस्ट डिटरमाइन n1, n2 and n3। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने x and y निकाला था, अभी इस प्रॉब्लम में आपको शेप फंक्शन निकालना है, जस्ट रिवर्स है। सम प्रॉब्लम गिवन कोऑर्डिनेट and asked to find out shape function. Some problem given shape function and asked to determine coordinates of unknown point, that is p. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको शेप फंक्शन निकालना है n1 and n2 and n3। सो फर्स्ट आंसर आ रहा है निखिल पाटिल 0.3, 0.2, 0.5। निखिल पाटिल का फर्स्ट आंसर है। बी डिवीजन रोल नंबर 53, निखिल पाटिल। n1 0.3, n2 0.2, then 0.5। please anyone confirm this answer? Yes, Krishna Khairnar, confirm that answer। विशाल, विशाल ने वैलिडेट कर दिया, चलो गुड। और किसी का कुछ अलग आंसर हो सकता है, ऐसा एसेंशियल नहीं कि मेजॉरिटी ऑलवेज विन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कभी कभी छोटा सा अजम्पशन भी गलत हो जाता है कि 99 लोग गलत आंसर देते हैं और एक का सही आंसर हो जाता है फिर, ठीक है। तो मैं ऑलवेज मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हूँ कि 10 लोगों ने सही आंसर दिया। ये सिर्फ आपका बूस्टअप है कि आपके आंसर 99% करेक्ट होते हैं। चलो, एनीवन, एनी अदर आंसर और वी गो फॉर सेम आंसर? ऐसे रिप्लाई से ऐसे लग रहा है कि बी डिवीजन के स्टूडेंट ज्यादा हॉनेस्ट है हॉनेस्ट है, अटेंटिव है। व्हाट अबाउट ए डिवीजन, सी डिवीजन? देखो ए के भी आंसर हो सकता है, यस। चंद्रशेखर फ्रॉम सी डिवीजन, यस। अगर आप डिवीजन लिखते हो तो मुझे जल्दी रिकॉग्नाइज होगा कि अब वेदर यू फ्रॉम ए डिवीजन, बी डिवीजन और सी डिवीजन, ठीक है। एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, लेकिन एक कुछ तो भी होता है ना यार, वी फ्रॉम ए डिवीजन, बी और सी। थोड़ी कंपटीशन होनी चाहिए,
तभी थोड़ा मजा आता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। विदाउट कॉम्पिटिशन मोटिवेशन थोड़ा कम आ जाता है। चलो गुड। विशाल फ्रॉम ए डिवीजन, यस यू रिप्रेजेंट फॉर ए डिवीजन, गुड। अगर आप ऐसे बढ़िया लिखते हो रोल ए विथ रोल नंबर, जैसे चंद्रशेखर ने लिखा है C58 रकीबे चंद्रशेखर, तो ऐसे अगर लिखते हो तो अटेंडेंस के लिए भी इजी होता है और मुझे जल्दी रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहले आंसर कंफर्म कर लेते हैं। N1 0.3 एंड 0.2 एंड 0.5, ओके। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड that is eta answer is 0.2, that is N2, okay। Psi 0.3, that is N1, N1 0.3, N2 eta 0.2 and N3 that is 0.5, yes correct, confirm answer। then for interest purpose जैकब, हाउ टू सॉल्व जैकबियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ mathematical form or matrix form of Jacobian transformation is J is equal to x13 y13 x23 y23 1323, ठीक है। बस इतना याद रखना है। x13 is nothing but x1 minus x3, y13 y1 minus y3, y23 sorry x23 x2 minus x3 y23 that is y2 minus y3। ये एक्चुअली कंफ्यूज मत हो कि y23 मींस y3 minus y2, ठीक है। हमेशा इन जनरल हम लिखते हैं कि y23 मींस सेकंड पैरामीटर माइनस फर्स्ट मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमेशा कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे y23 लिखना है तो y3 minus y2, तो ऐसे याद मत रखो। जैकबियन के लिए सीधा सीधा y23 means y2 minus y3, ठीक है। so we have all these value x1 x2 x3 as well as y1 y2 and y3, just put in respective place and solve, ठीक है। तो जैकबियन ट्रांसफॉर्मेशन बताएं, ठीक है। अगर आपको एक्चुअली डिटरमाइन निकालना है तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो लिखना कुछ नहीं, सिर्फ उस जैकबियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको प्लेस करने वैल्यू, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चन विथ दिस न्यूमेरिकल ऑफ शेप फंक्शन, ठीक है। तो 10 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली 3-4 मार्क्स अलॉटेड फॉर जैकबियन, ठीक है, मींस बोनस मार्क्स है आपके लिए। तो पूरा यूनिट 3 आपके लिए बोनस है इन FEM, okay। In point P located inside triangle P as shown in figure, find the shape function। I think सेम फैशन में हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 given, देन फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ऐसे सॉल्व किया था। सो find the shape function n1 n2 n3, it required natural coordinate that is psi and eta, ठीक है। तो टू इक्वेशन टू अननोन, उस प्रिंसिपल से we can determine value of psi and eta, similar with first problem, we already solved first problem। so n1 0.4 n2 0.1 n3 0.5। someone raise their hand, किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? किसने हाथ रेज किया है प्लीज? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है। प्रॉपर्टी दैट इज टेम्परेचर in degree Celsius at node 1, 2, 3। Known property at node that is temperature. So obviously determine
द प्रॉपर्टी एट पॉइंट P इज टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ पैरा मींस प्रॉपर्टी चेंज है, मेथोडोलॉजी रिमेन सेम। रिस्पेक्ट मींस टेम्परेचर गिवन है नोड 1 2 3, so 100 200 and 300, the coordinate of node and point P given. Coordinate at node 1, that is x1 y1 x2 y2 x3 y3. So 0 0 10 0 5 8, and x and y for point P, that is 5 and 6. T1 T2 T3, that is temperature at node 1 2 3, respective coordinate x1 y1 x2 y2 x3 y3. Coordinate of x and y 5 and 6. Estimate the shape function and temperature point at P. अभी क्वेश्चन है कि शेप फंक्शन निकालना है n1 n2 n3 एंड टेम्परेचर एट पॉइंट P। तो प्रीवियस में हमने दो डिस्प्लेसमेंट निकालना था, u1 एंड सॉरी u एंड v। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी निकालना है, टेम्परेचर। निखिल पाटिल, n1 n2 0.125 and n3 0.75. Okay, this is regarding with current example ना निखिल? करंट मीन्स ये टेम्परेचर का जो एग्जांपल चलो उसका आंसर यस। चलो निखिल पाटिल ने सही है, देखते हैं। n1 n2 एंड n3 तीनों आंसर दिए हैं। ओके, तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। तो इक्वेशन T इज इक्वल टू n1 T1 प्लस n2 T2 प्लस n3 T3। ठीक है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आपको टेम्परेचर निकालना है। तो अगर आपके आंसर सही है, देखो n1 0.25 n2 0.25 125 सॉरी 125 एंड n3 0.75, तो आप इजीली टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट you need to find out u and v along two direction x and y. Then जैसे टेम्परेचर सिंगल पॉइंटेड है तो आपको सिंगल निकालना है। ठीक है, along x and along y नहीं निकालना है। ऑन नोड जैसे 1 2 3 गिवन है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर एट पॉइंट P मीन सिंगल वैल्यू। ओके, यस विशाल ने भी सही आंसर दिया है, गुड। तो ज्यादा ट्रिकी नहीं है, सिर्फ आपको अगर ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, लास्ट इक्वेशन एंड जस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। लास्ट इक्वेशन रिक्वायर्ड शेप फंक्शन एंड रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज एट नोड 1 2 3, बस इतना। आई थिंक दो ही पैरामीटर रिक्वायर्ड है, दैट इज शेप फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज एट नोड 1 2 3। सो जब तक आपको नोड 1 2 3 की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तब तक आप अननोन नहीं निकाल सकते। ठीक है, मींस जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे या इस केस में T1 T2 T3 है, तो ऑब्वियसली दैट गिवन इन प्रॉब्लम। ओके, तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है शेप फंक्शन फाइंड आउट करना। यस, भारत गौड़ी करेक्ट आंसर 262.5। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कंफर्म हो रहा है। ठीक है, देखो क्रॉस चेक करने के लिए आप निकाल सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्लाइड पे जो आंसर है वो करेक्ट ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, अगर मे बी किसी का आंसर सर 260 है तो यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, ऐसे इंश्योर नहीं कि यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट आपका आंसर आइडेंटिफाई होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए और आपका वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, चलो तो वैलिडेशन के लिए लास्ट मैं हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि स्लाइड के आंसर भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। चलो तो तीनों ने आंसर कंफर्म किया है। तो टेम्परेचर इक्वल टू 262.5 डिग्री सेंटीग्रेड। Next type of question, that is known property in terms of temperature at node.
a CST element is defined a node that is I J K. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 नहीं लिखा है, nomenclature in terms of alphabets I J K. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैं पढ़ा रहा था तो सर आपने 1 2 3 पढ़ाया था और एग्जाम में आई जे के आया था, तो इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया। ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है ना। सो आप वेल मैच्योर्ड हो, बी के स्टूडेंट, ठीक है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है। sometime node represented in terms of numbers or sometime node represented in terms of alphabets, doesn't matter, ठीक है। so node I J K 1 2 3, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए जैसे आपके क्वेश्चन में आई जे के है तो आप यूज आई जे के, ठीक है। नहीं तो चलो सर ने ऐसे ही पढ़ाया था, नहीं तो बुक में ऐसे ही दिया है कि 1 2 3 ही लिखना है, तो ऐसा मत करो, जो क्वेश्चन में है प्रॉब्लम में वही आपको रिप्रेजेंट करना है। सो आई जे के, these are three nodes, while the stresses at these node are 90 120 160 megapascal respectively. Determine the stresses at point P. तो सेम प्रॉब्लम है जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में टेम्परेचर एंड इस प्रॉब्लम में स्ट्रेसेस है, डिफरेंस नहीं है। ओके, सो अगेन फाइंड आउट शेप फंक्शन n1 n2 n3 एंड स्ट्रेस एट पॉइंट P। ठीक है, अभी मुझे n1 n2 3 नहीं चाहिए, मुझे लास्ट आंसर चाहिए, स्ट्रेस एट पॉइंट P। स्ट्रेस एट पॉइंट P, फास्ट आंसर चाहिए, फास्ट। अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई, जो लोग रियली सॉल्व कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आप अभी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलो, स्ट्रेस सिग्मा एट पॉइंट P, सिग्मा एट पॉइंट P की इक्वेशन, सिग्मा इज इक्वल टू n1 सिग्मा I प्लस n2 सिग्मा J प्लस n3 सिग्मा K। फर्स्ट आंसर फ्रॉम निखिल पाटिल 124.5 मेगापास्कल। यार निखिल, यार दूसरों को भी चांस दो ना। आप आंसर देने के बाद आई थिंक ऐसा डिमोटिवेट हो सकता है बाकी स्टूडेंट, यार निखिल ही आंसर दे रहा है, चलो अभी देने की जरूरत ही नहीं है हमें। निखिल, चलो गुड, चलो मजाक कर रहा था, नहीं तो सीरियसली लो। चलो वेल डन निखिल। एनी अदर आंसर? यश आगरकर, विशाल, जैस्मिन, चंद्रशेखर, कुणाल साळुंखे, कृष्णा खैरनार, नीरज घरात, पूजा राठौड़, चलो एनीवन? कुछ तो भी नए नाम दिखाई देने चाहिए। प्रतीक लूटे, प्रतीक थोरात, राहुल महाजन, राहुल मोरे, ऋषिकेश, समीर पाटिल, चलो एनी अदर? लास्ट आंसर? चलो सेकंड आंसर फ्रॉम तन्मय लोखंडे 123.8। चलो डिफरेंस, चलो बहुत टाइम के बाद डिफरेंस दिखाई दे रहा है। निखिल पाटिल से 124, तन्मय लोखंडे से 123, चलो डिफरेंस है, गुड। जब आप रियल कैलकुलेशन करते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है थोड़ा। अगर नंबर ऑफ डिजिट जो आप कंसीडर करते हो उसमें अगर डिफरेंस है तो ऑब्वियसली डिफरेंस आता है। कार्तिक नवल 124, देखो निखिल पाटिल से 124.5, तन्मय लोखंडे से 123.8, कार्तिक 124, तीनों डिफरेंट आंसर है। देखो अब डिग्री होल्डर हो, बेस्ट बेस्ट इन डिग्री,
सो डिजिट के बाद सॉरी पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच होने चाहिए फॉर एक्यूरेसी पर्पस। फॉर एमटेक पॉइंट के बाद मींस पोस्ट ग्रेजुएट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट, एंड फॉर पीएचडी पॉइंट के बाद एटलीस्ट 7 डिजिट मैच होने चाहिए। दैट इज नथिंग बट एक्यूरेसी। जैस्मिन 124.2, प्रसाद से 124.1। अभी भी कोई भी दो आंसर मैच नहीं हुए, ठीक है। अभी रियल में लग रहा है कि चलो सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच होने चाहिए एटलीस्ट। अभी सिंगल डिजिट मैच हुआ तो भी चलेगा। चंद्रशेखर 123.53, 123.8 तन्मय का आंसर था, 123.53। चलो पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट भी मैच हुआ तो भी चलेगा। लेकिन अभी तक एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, मींस किसी का भी ऐसे 2 आंसर नहीं आ रहे। चलो 2 स्टूडेंट ने सेम आंसर दिया, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। रुपेश अहिरे 123.94, नहीं अभी भी मैच नहीं हो रहा है। 123 के 3 आंसर है, 123.8, 123.5, 123.9। एटलीस्ट 2 आंसर मैच होने चाहिए एटलीस्ट अभी इस सिचुएशन में। विनीत लोखंडे 123.78, नहीं अभी भी मैच नहीं हो रहा है। 123.7 भी अगर मैच होता है तो भी मैं बोल दूं। 123.78 आ रहा है। चलो डिवीजन की बात छोड़ दो, एबीसी, चलो वी आर फ्रॉम मैकेनिकल, चलो एटलीस्ट 2 आंसर मैच। चलो हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं आज के लेक्चर में। प्लीज शुभम अहिरे 123.84, ओके, एंड तन्मय आल्सो से 123.8, somewhat similar, that is 123.8। so at least 2 आंसर मेरे पास आ गए, ठीक है। अगर 123.8 अगर थर्ड आंसर आता है तो वैलिडेट हो जाएगा आपका आंसर। चलो एनीवन रिप्लाई? I don't know whether 124 or 123 is correct or wrong, ठीक है, हम सिर्फ वैलिडेट कर रहे हैं। ओके शुभम सोनू ने 120.67। करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, नॉट फ्रॉम मी, 124.5। 124.5 किसी का आंसर था 124.5। सो यस, निखिल पाटिल फर्स्ट आंसर ही करेक्ट था, 124.5, ठीक है। So don't worry about 124 or 123, it's only matter of accuracy. Your all answer are correct. Shubham Sonone, you are somewhat away from correct answer 120. Actually this is not acceptable. So if correct answer is 124, so acceptable, maximum acceptable range, that is 123 and 125. This is acceptable range exam point of view. So correct answer is 124.5. So Sonone, please check your answer once again, and majority आपके आंसर है 123, so 123.8। yes, भारत गौड़ी से 124.5, second correct answer, भारत गौड़ी 124.5। so don't worry about your answer, your all answer are acceptable, 120 means range from 123 to 125। चलो so near about similar problem asked in a different exam, ठीक है। मेथोडोलॉजी आई थिंक आपको क्लियर है अभी, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो आप थोड़ा इमेजिन करो कि जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी द आंसर ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट पी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ माइंड में सिर्फ एक मार्क्स, सिंगल मार्क्स के लिए आपके माइंड में रखो, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनी एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है. Such type of question ask only for only 1 marks and maximum that is 2 marks. ठीक है. तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. देन सेम फैशन में दूसरे प्रॉब्लम से यहाँ पे प्रॉपर्टी दैट इज डिफ्लेक्शन. Sometimes you say deflection, deformation, then temperature, stresses, strain, okay, like that. So these are the different property we need to calculate by using shape function. So this is our summary. We have learned from this session how to derive shape function for CST element, that is n1, n2, n3 in terms of natural coordinate. So n1 equal to psi, n2 equal to eta, and n3 equal to 1 minus psi minus eta, and solve different numerical on the basis of shape function to determine different properties such as temperature, strain, stresses. Okay, so hope